वेलकम टू माइंडेड टॉक्स। आज हमारे साथ पैरा एथलीट के एक और बड़ी शख्सियत रमन जी प्रेजेंट हैं। 12 जनवरी 1989 मुजफ्फरपुर में इनका जन्म हुआ और धीरे धीरे इनकी जर्नी के बाद ये दिल्ली आए और इन्होंने एमए हिस्ट्री का स्टैन स्टीफन कॉलेज में करी। ये 100 मीटर और 200 मीटर रनिंग और लॉन्ग जंप करते हैं। इनका बेस्ट स्कोर 100 मीटर में 12.22 सेकंड का रहा है और 200 मीटर के अंदर 25.97 सेकंड्स का रहा है। इनके कुछ अवार्ड्स में से मैं बताना चाहूंगा कि फोर्थ प्लेस इन्होंने लिया था एशियन पैरा गेम्स में, जो कि इंडोनेशिया में हुआ था। इनका फर्स्ट सिल्वर मेडल इन 8th इंटरनेशनल ओपन पैरा एथलीट यूएई में हुआ था। एक ब्रोंज मेडल इन्होंने लिया था पैरा एथलीट में 2018 के अंदर। और बहुत सारे अलग इंटरनेशनल मेडल्स हैं। इनके साथ साथ इन्होंने नेशनल गेम्स के अंदर भी 2 मेडल लिए थे। ओपन नेशनल पैरा एथलीट 2019 के अंदर, जो बेंगलुरु में हुआ था, कर्नाटका में। एक गोल्ड मेडल है इनका नेशनल एथलीट चैंपियनशिप 2018 में। दो गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल 17th नेशनल पैरा एथलीट चैंपियनशिप इन 2017, जो जयपुर राजस्थान में हुआ था। 4 गोल्ड मेडल जो 19th IBSA नेशनल स्पोर्ट्स मीट के अंदर ब्लाइंड में हुए थे 2014 में। और ऐसे ही बहुत सारे गोल्ड मेडल और इंटरनेशनल मेडल इनके बॉक्स में है। रमन जी, आपका माइंडेड टॉक पे आपका स्वागत है सर। थैंक यू सर। सर, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? कहाँ पे आपका जन्म मुजफ्फरपुर में, उसके बाद की जर्नी के बारे में थोड़ा दृष्टि दे पाएंगे सर? हाँ सर, मैं मुजफ्फरपुर जिले के सांगोपट्टी गांव में, बिहार में है, जो कि वहाँ पे मेरा जो जन्म स्थान है। जी सर। और वहाँ मतलब होने के बाद, इनिशियल ब्रिंगअप होने के बाद मैं पटना में भी एक स्पेशल स्कूल है कदम कुआं में, जी सर। वहाँ से 5th स्टैंडर्ड तक एजुकेशन करने के बाद आई केम टू दिल्ली इन 2001। जी सर। एंड सिंस देन आई हैव pursued my education from Blind Relief Association, that is in nearby Oberoi Hotel, near Lodi Road. And after that, I graduated and post-graduated from St. Stephen's College, as you said, from Delhi University. And in the meanwhile, I was pursued my sports as well with my rigorous effort. And it is because of my hard work, it is possible that I'm able to manage sports and as well as my education. So it is very difficult to balance between them, but still I worked hard. I did everything for both education and my sports as well. That's why I'm here. And now, as you earlier mentioned in your talk, I am associated with Union Bank of India as well. So professionally, I am settled, and sports is also going very well. Okay, sir. So Ramanji, what your schedule is like now since you're working now? तो आप कैसे मैनेज करते हैं your practice and your work? It must be difficult. Yes, my schedule starts at 5:30 a.m. in the morning. Okay. And after that, I get ready and go to this Jawaharlal Nehru Stadium for my morning practice session. After that, I come back around 9 or 9:15. After that, I have to get ready for my office because I have to be there by 10 or 10:15. So after finishing up my office, I again reach to the Jawaharlal Nehru Stadium for the evening practice session around 5 p.m. For that, bank is also cooperating with me. So when I ask my evening practice session is going on, then they allow me to go a little early. So that's why I am like managing my job and sports as well. So from 5 to 7, I have to spend my time with for my evening session.
and after that I come home, and after that I come home, and after that we dinner and all. Then I sleep around 11. Okay. Okay. So do you have any other hobby apart from playing sports and working? Yeah, my hobbies are like, I also like to play, apart from my athletics, many games like chess, cricket. I love to read romantic books, and I love to listen melodious, soothing musics as well. Okay. Nice. So these are my hobbies. Okay, sir. सर बहुत ही महान पुरुष ने ये कहा है कि अगर लाइफ में अगर आपको कुछ पाना है तो आपको सूरज को जगाना पड़ेगा, तभी आप लाइफ में कुछ पा पाएंगे। तो मैंने जैसे ही आपका शेड्यूल सुना, वो लाइनें मेरे कान में दोहराने लगी करके कि आप हर रोज सुबह सूरज को जगाते हैं, और बहुत सारे जने अब सपने तो देखते हैं मगर सूरज जागने के बाद जागते हैं करके सर। Because without this is not possible. जी सर, जी सर, जी सर। सर ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुए सर? स्पोर्ट्स की तरफ रुझान क्या हो, कैसे बना? कौन आपके वर्क मॉडल थे? किसने आपको स्पोर्ट्स में लेके आए सर? सर अगर हम इसकी बात करें तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 2001 इटसेल्फ। मैं एक कंपटीशन में गया हुआ था जो कि पटना में ऑर्गेनाइज हो रहा था, गांधी मैदान में। तो वो जो कंपटीशन था वो जस्ट एक कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन टाइप, पर उस रेस में मैं लकीली जीत गया। और जीत गया ऐसा, आई वाज लाइक इन अ वेरी यंग एज, एंड वो बोला बंदा कि मैं विसिल बजाऊंगा एंड यू हैव टू रन बिहाइंड मी। तो व्हेन आई रैन, मैं उसको पीछे छोड़ दिया। तो उस समय से मुझे ऐसा मुझे मतलब मेरे में खुद में एक कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, आई कैन डू स्प्रिंट। तो तभी से मैंने अपना जो है स्प्रिंट के प्रति, मतलब कहीं भी जाना है तो उसको, जैसे कि आई हैड अ विजिबिलिटी इन 1999 1998 के दौरान। तो उस समय कोई भी काम करना, जैसे कि यहाँ से वहाँ जाना है, तो डिस्पाइट ऑफ वॉकिंग आई विल गो देयर बाय रनिंग और ब्रिस्क वॉकिंग एंड लाइक दिस। तो उस तरह से मेरी मतलब आदत में स्प्रिंटिंग आ गई। और 2002 में फाइनली मैंने अपना एज अ करियर स्पोर्ट्स को मतलब परस्यू करने लगा, और मेरा फर्स्ट नेशनल गेम 2002 में था दिल्ली में। ओके सर, ओके। तो ये मेरा एक छोटा सा वैसा है फनी टाइप, बट फ्रॉम देयर आई हैव गॉट मोटिवेटेड कि नहीं मुझे करना चाहिए, क्योंकि प्राइज में ना कुछ कुछ मिला था जी। तो आई वाज सो हैप्पी कि हाँ यार दौड़ने से तो मिलता भी है कुछ कुछ। तो उसके बाद से फिर बहुत कुछ मिला, फिर बहुत हार्ड वर्क भी किया, अच्छा भी लगता है। अब आई एम एंजॉयिंग माय स्प्रिंटिंग। सर वही तो, भगवान को सर हमसे ज्यादा पता होता है कि कहाँ पे किस समय पे कहाँ पे होना चाहिए। और आप उसी दुआओं के कारण, उन बहुत सारे लोगों की, अपनी फैमिली की दुआओं के कारण बिल्कुल सही समय पे सही जगह पे थे, तभी आपको वो टारगेट दिखाई दिया सर। सर इसमें आप अभी आप बताते समय आप बता रहे थे कि आपका थोड़े टाइम के लिए विजन था, 2 सालों में उस टाइम पे प्रैक्टिस कर रहे थे। सर विजन का क्या स्टोरी है सर आपका? सर ऑल ऑफ अ सडन वो पता नहीं, डॉक्टर ने बोला कुछ हो सकता है कि जी अंदर वेन्स की प्रॉब्लम है, पर ऑल ऑफ अ सडन ये चली गई साइड। जी 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 ऐसा हुआ, तो दैट वाज आल्सो अ हार्ट ब्रेकिंग थिंग। बट फिर क्या है, देयर इज नो अदर गो। हाउ ओल्ड वर यू बैक देन सर? कम अगेन प्लीज मैम। हाउ ओल्ड वर यू बैक देन? आई एम 33। No, when you lost the vision, when you realized. I was 12. I was 12. Okay, you were 12. Okay. तो सर फिर मतलब उस टाइम पे फैमिली को ये एक्सेप्टेंसी, आपको ये एक्सेप्टेंसी सर, मतलब आपने ये सारी चीजें ओवरकम कैसे की? आपकी फैमिली ने ये सब चीजें ओवरकम कैसे की? हाँ, शुरू में तो ऐसा लगा कि सब कुछ हो गया शायद से जी, बट वही है कि शुरू में फैमिली वालों का सपोर्ट रहा। तो कुछ दिनों में ही मतलब यूज टू हो गया सब कुछ जी। और फिर जब एजुकेशन स्टार्ट हो गया तो थोड़ा सा और भी लगा कि हाँ और एवेन्यूज है जी। तो मेरा शुरू से एक मतलब एक सिद्धांत बन गया कि whatever you have just make best use of that
रेस्ट लीव इट टू द गॉड। बिल्कुल सर। तो इसी को अपना एक मंत्रा बना के मैं चला। आई एम अ वेरी सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन। जी सर। तो अपने आप को पुश करते हुए फिर यहाँ तक पहुंच गए। जी सर, बहुत ही अच्छी लाइन बोली सर यहाँ पे, सेल्फ मोटिवेटेड। सर मैं हर एक को जो भी एज ए डॉक्टर कई जने मेरे को डिसमोटिवेटेड फोन करते हैं, तो मैं जब उनको मोटिवेट करता हूँ तो मैं उन्हें यही बोलता हूँ कि आपको मैंने मोटिवेट कर दिया, ये मोटिवेशन मोबाइल की चार्जिंग की तरह है। मैंने आपको एक बार चार्ज कर दिया, आप आज चार्ज सबसे ज्यादा रहेंगे और धीरे धीरे कम होते जाएंगे। मगर जिस दिन आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करने लगे, आपको दुनिया की कोई चीज रोक नहीं सकती। और यही चीज वही आपको आपको आज यहाँ तक लेके आई सर। एंड वी आर वेरी हैप्पी टू सी यू एज वेयर यू आर राइट नाउ सर। सर आप अगर स्पोर्ट्स में नहीं होते तो आपका क्या सपना था बचपन में, क्या चीज बनना चाहते थे, फ्यूचर क्या देखते थे? नहीं सर, मैं बचपन में ये सवाल, मैं जब सेंट स्टीवेंस के लिए इंटरव्यू दे रहा था तो भी मेरे से ये सवाल पूछा गया था। जी सर। तो मतलब हमारे जो फैमिली है में सभी एजुकेशन बैकग्राउंड से ही हैं। जी सर। मेरे फादर हेडमास्टर थे, मेरे ब्रदर्स भी टीचर हैं, एक ब्रदर बस एयरफोर्स में है। ओके। तो शुरू से ही मेरा वो था कि मुझे लेक्चरर बनना है। ओके सर। तो मुझे सेंट स्टीवन के इंटरव्यू में भी पूछा गया कि व्हाई नॉट आईएएस ऑफिसर। ओके सर। तो मैं बोल दिया सीधा कि नहीं नहीं, मुझे नहीं बनना है। तो यू डोंट वांट लाल बत्ती, क्योंकि उस समय तो लाल बत्ती चलती थी। बिल्कुल सर। आई सेड कि नो सर। तो मेरे यही मतलब मेरा एम्बिशन यही था, उसके लिए मैंने करा भी। पर आफ्टर कंप्लीटिंग माय मास्टर्स आई स्टार्टेड pursue sports rigorously. That's why I couldn't pursue my higher study. So till 26 I'll do my best in sports. जी sir. After that, if time will allow, then again I'll start my studying and all. Okay sir. Okay. Okay. Yeah. तो आपकी जो ट्रेनिंग है वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड ट्रेनिंग होती है या क्या कौन स्पॉन्सर कर रहे हैं आपकी ट्रेनिंग को? नहीं, अभी तक तो मतलब पर्सनली मेरे को कोई स्पॉन्सर नहीं है। ओके। आई एम डूइंग माय ओन। तो सर हाउ डिफिकल्ट इट इज टू ट्रेन, मतलब क्या डिफरेंसेस होते हैं एक नॉर्मल एक पैराथलीट में और एक दूसरे एथलीट में, उनके ट्रेनिंग के हिसाब से या उनके पास में जो फैसिलिटीज होती हैं? सो व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड कि ये होना चाहिए अगर नहीं है तो? अगर हम पैरा एथलीट्स के बारे में बात करें, एज पर पैरा एथलीट्स आर कंसर्न्ड एज कंपेयर टू नॉर्मल एथलीट्स, तो पैरा एथलीट को हर मतलब एरियाज में एक्सपेंसेस थोड़ा ज्यादा होते हैं नॉर्मल से। अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरे बारे में हमारे उस पे इवेंट के अकॉर्डिंग, अगर मेरी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर सोचें, तो जैसे कि मेरे लिए एक गाइड रनर जो कि कंपलसरी है, गाइड रनर कंपलसरी है, तो दोनों अगर सेम वर्कआउट कर रहे हैं तो सेम डाइट भी चाहिए, बल्कि ज्यादा चाहिए। मतलब उसके बाद जो भी फैसिलिटी है दो लोगों की होनी चाहिए, क्योंकि वही काम वो भी कर रहा है, उतने ही पेस पे कर रहा है, उतनी एनर्जी उसकी भी लग रही है। अगर नॉर्मल एथलीट में तो इंडिविजुअली आपको करना है। तो जो पैरा एथलेटिक्स में जो वेरिएशंस है ना, वो बहुत ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग उनके नीड्स होते हैं। जैसे हम लोगों के लिए गाइड रनर का एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का, जैसे हम लोगों का क्या है कि जैसे नॉर्मल अगर है तो आप यू कैन वॉक, अगर 2 किलोमीटर है तो आप जा सकते हो, पर हमें थोड़ा कैब लेना होगा। मतलब जाने को जा सकते हैं, बट अपने आपको इसका भी ध्यान रखना है कि आपके लेग्स इंजर्ड ना हो। आप कहीं अगर जा रहे हो तो अच्छे सर्फेस से अच्छे से जाएं। तो इन सब चीजों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है जब कॉम्पिटिशन अराउंड द कॉर्नर होते हैं। तो इससे हम लोग को बेसिकली क्या होता है कि कॉस्ट अगर देखें तो पैरा एथलीट्स के लिए मतलब बहुत ही एक्सपेंसिव होता है स्पोर्ट्स। राइट। सो इसलिए अगर हम अगर देखेंगे तो जितना मतलब अगर नंबर ऑफ स्पेशली एबल्ड पर्सन इन इंडिया, उसके 2 या 3% ही लोग स्पोर्ट्स परस्यू कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस। एक तो अवेयरनेस थोड़ा सा, और दूसरी बात दे कांट अफोर्ड। सो यू थिंक कि जो ये अभी नई स्कीम्स आ रहे हैं, खेलो इंडिया है या टॉप है, तो ये मतलब ये एक्चुअली those schemes for elite athletes, like for the beginner nothing, but Delhi में अभी हाँ एक I forgot to mention that
last year. Okay. There is a scheme in Delhi, Mission Excellence. Those like elite athletes from Delhi, we have been selected in that scheme, Okay. and we are being sponsored अभी 2 साल से. Okay. Okay. So, sir, do you think that you should also motivate youth and tell them that it's possible, और आप भी join करें, या आप कुछ ट्रेन करने के बारे में सोचते हैं कि मैं भी ट्रेन करूं, हो सकता है कि मुझे जो चीज ना मिली हो वो और बच्चों को मिले? नहीं, ये तो मेरी एक दिली इच्छा है कि आफ्टर 2026 एशियन गेम्स मैं जरूर, लेकिन मेरा बहुत बड़ा लक्ष्य भी नहीं है. मैं सोच रहा हूँ बस केवल 5 लोगों की ऐसी एकेडमी बनानी है, 5 लोगों के लिए, मतलब हर साल 5 लोगों को इंडक्ट करना है, जिनका ड्यूरेशन रहेगा 4 years, ओलंपिक टू ओलंपिक. उस बीच में जो भी गेम्स आएंगे सारा कुछ करना है, और 5 ऐसे एथलीट्स को जरूर तैयार करना है 4 साल के अंदर. हर 4 साल में 5 नए एथलीट्स, हर 4 साल में 5 नए एथलीट्स. थैंक यू मैम. तो अभी मैं अपना, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अपना बेस्ट नहीं कर पाया हूँ, तो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉमनवेल्थ लंदन 2022 and Asian Games. That is also scheduled into 2022 in China. So सब कुछ करने के बाद फिर उधर सोचेंगे और जरूर करेंगे. जी सर, माइंडेड फाउंडेशन भी आपके साथ है सर, इस सपने के साथ ही रहेगी आप? नहीं, ये तो करना ही करना है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए हैं वो आगे आने वाले टाइम में जितना मैं इसको मिनिमाइज कर सकता हूँ. आई एम नॉट सेइंग कि मैं खत्म कर दूंगा जी, लेकिन लीस्ट जो मैं कर सकता हूँ वो मैंने सोचा है, इतना मैं कर पाऊंगा. मतलब मैं आई एम एट दिस स्टेज कि अगर मैं अपना स्पोर्ट्स छोड़ देता हूँ तो मैं इतना जरूर कर पाऊंगा. बिल्कुल सर, बिल्कुल. आपके विद द हेल्प ऑफ ऑल यू काइंड ऑफ पीपल. जी सर, आपके सपने के साथ हमारी दुआएं और हम भी दोनों साथ में हैं सर. हाँ जी, यस सर. आपकी पहली इंटरनेशनल गेम सर, वो पहला इंटरनेशनल गेम होता है, पहला प्रेशर होता है, गेम से पहले वाली नाइट होती है, वो शायद एथलीट कभी भी जिंदगी भर भूल नहीं पाता सर. तो हमें आपका वो एक्सपीरियंस भी जानना है सर, और वो प्रेशर जो इंटरनेशनल गेम का होता है एथलीट के ऊपर, उसको आपने कैसे हैंडल किया सर, उसके ऊपर भी थोड़ा हमें आप जानना है सर. अगर इंटरनेशनल की बात करें तो पहले तो बहुत ही दर्द भरी कहानी है कि जब मेरा पहली बार इंटरनेशनल में सिलेक्शन हुआ जी सर, तो मेरे पास पैसे ही नहीं थे. उस समय ओन कॉस्ट पे जाना होता था 2005 में बेल्जियम के लिए. जी सर, जी तो मैं जा ही नहीं पाया था. अच्छा. मैंने यहाँ से लेके और अपने बिहार गवर्नमेंट तक अप्रोच करा. जी सर. बहुत कुछ आश्वासन मिला, पर जब जाना था, जब पैसे देने थे तो कुछ नहीं हो पाया. इस तरह से जो मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल था वो तो मिस हो गया था. अच्छा. पर इन 2006 I have been selected for the Pacific Games, and I was one of the first totally blind person from India who was selected for this game. जी सर. तो आपने पूछा कि कंपटीशन के नाइट, लास्ट नाइट क्या होता है, कैसी फीलिंग रहती है. तो उसमें बस ये रहता है कि जब आपको लगता है, तो पहले तो हम ये ध्यान देते हैं, मतलब कि दिन से ही ये शुरू हो जाता है, यार खाना क्या है, लास्ट मील क्या होना चाहिए जो कि इजीली डाइजेस्ट हो पाए, और डाइजेस्ट हो ताकि हम अपने आप से कम वो सही रहें, मतलब फिजिकली सही रहें. अगर मेंटल प्रेशर की बात करें तो सबसे बड़ी बात तो ये रहता है यार कि दिमाग में चल रहा होता है कि ये नहीं करना है, ब्लॉक पे थोड़ा अच्छे से बैठना है, फाउल नहीं करना है, गनर को अच्छे से सुनना है. और वो फोबिया जो कॉम्पिटिटर्स का होता है कि यार कौन कौन से कंट्री के एथलीट्स हैं, तो फिर मैं उसको डिविएट करने के लिए मैं बोल देता हूँ अपने गाइड रनर को कि मुझे बताओ ही मत कि कौन कौन से कंट्री के एथलीट्स हैं. तो ये सब कुछ ऐसे ट्रिक्स होते हैं जो कि हम लोग रात भर सोचते रहते हैं. फिर अपने मन में ही अपने आप को जो फोबिया होता है कंपटीशन का, उसको भगाने के लिए कुछ से कुछ म्यूजिक सुन के या फिर कुछ ऐसे बातें करके उसको हम अपने आप को डिविएट करने की कोशिश करते हैं, ताकि उसका मेंटल प्रेशर ना हो, हार्ट बीट ना बढ़े. जी सर. तो इस तरह से हम लोग कंपटीशन में जाते हैं ताकि आप फ्रीली कंपटीशन की तरह खेल पाएं और अपना बेस्ट दे पाएं. जी सर, सोसाइटी के रिस्पांस पे आपके लिए प्री एथलीट और पोस्ट एथलीट
क्या अंतर थे उनका, नजरिया आपको देखने के लिए क्या अंतर था। और कभी कभार ऐसा होता है कि सर इंसान पुरानी आग जो होती है उसी के कारण इतनी मेहनत कर रहा होता है, तो सर और एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आती है बाद में एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आती है कि हाँ आई प्रूव्ड माई सेल्फ। तो सर वो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन कैसी थी, और सोसाइटी का जो देखने का नजरिया था जो चेंज हुआ करके, उस बदलाव के बारे में सर थोड़ा बहुत बता पाएंगे सर, प्री एथलीट और पोस्ट एथलीट। नहीं सर, प्री एथलीट में ना, जैसे कि आप अगर मान लो यू आर स्पेशली एबल्ड, तो जो मैंने महसूस किया है कि आपको एक्सपोजर इतनी आसानी से नहीं मिलता है। जी सर। और इतने छोटे मतलब कि कम एज में तो बहुत ही मुश्किल है। और अगर आपको एक्सपोजर नहीं मिलता है तो कई बार हम या तो होम बाउंड टाइप हो जाते हैं या फिर थोड़े से इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। जी। तो स्पोर्ट्स जो प्री एथलीट पीरियड मेरे लिए था वो एक तरीके से मतलब ऐसा था कि जस्ट आई एम लिविंग माई लाइफ फॉर द सेक ऑफ लिविंग। तो इतना मतलब सेटिस्फैक्टरी नहीं था, मुझे ऐसा लगता था कि यार what is going to be my contribution to the society, for me, for my family and all. But as soon as I joined sports और फिर उसके बारे में पढ़ा, उसके बारे में जाना, उस फील्ड को समझा, तब मुझे ऐसा लगा, फिर स्पोर्ट्स के बेनिफिट्स को समझा। इसका जो एक स्लोगन है हेल्दी वर्ल्ड जी, तो इसके बारे में फिर मुझे अपने आप में मतलब बहुत ही एक मोरल कहते हैं ना, बूस्टर का काम किया। और उसके बाद ऐसा लगता है कि अपने आप को हमेशा पुश करते रहो। एक तो स्पोर्ट्स तो एक एरिया है, आप जितने एरिया में काम कर सकते हैं आपको करना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये रहा, बड़ी बात बोली सर आपने सर। क्योंकि ये जो एक्सपोजर है ना, ये आप अगर थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें, इमेजिन करने की कोशिश करें, तो 1.4 बिलियन लोगों में कितने स्पोर्ट्स पर्सन होंगे? जी सर, बहुत कम। जी। तो इस तरह से सोच के भी बहुत प्राउड लगता है मुझे लगता है कि जैसे कि आई एम टॉप 5 इन एशियन कॉन्टिनेंट, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार कम से कम 20-30 लाख से भी ज्यादा होंगे टोटली ब्लाइंड पर्सन, नहीं 1 करोड़ अबव एशिया में। और उनमें भी अगर मान लो इन टोटल तो हमें देखना ही है ना। जी जी सर। फिर अगर अपने आप को देखते हैं कि हम कहाँ हैं, तो आई फील सो हैप्पी। तो अच्छा लगता है। नहीं, बहुत ही अच्छी बात है, तो बहुत ही अच्छा लगा ये सब सुन के सर। और ऐसा भी लगता है आदित्य कि सर एक्चुअली बहुत ही सेल्फ मोटिवेटेड है, इन्हें कहीं और से मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। नहीं वो तो है मैम, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई वांट टू शेयर इट सर कि माइंडेड का एक्चुअली क्या पर्पस है, वी हैवंट रियली टॉक्ड अबाउट इट, कि हम क्यों ये इंटरव्यूज लेते हैं, कि व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दीज इंटरव्यूज, because we all face difficulties in our life. Yes, everybody faces difficulties. Everybody faces difficulties. So but there are people who are, there are very few people who can actually make difference. Yes, yeah. So especially when I'm talking to you, I know that I don't even have that kind of motivation. I may have faced or I may have difficulties, but the way you deal with it, it's and burning example in front of us, Neeraj Chopra. Ji sir. In 124 years, nobody has done this work, and he has done it. Right. And what would you say? और सर मुझे लगता है कि आप इतना मोटिवेशन किसी को दे सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई और दे पाएगा। होता है। सेट एग्जांपल्स ऑलरेडी। मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी लोग हैं थोड़े से मतलब कंफ्यूज रहते हैं, अपना 1 या 2 एरिया डिसाइड करना चाहिए, उस पर फोकस्ड रहना चाहिए। बस चाहे कुछ भी डिसाइड कर लिया, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हर कोई अपना एरिया चूज करता है, लेकिन फोकस जो है ना वो मिसिंग होता है हर किसी के उसमें। आपने एम्बिशन तो डिसाइड कर लिया, पर उसके लिए आप कितने फोकस्ड हैं, कितने डेडिकेटेड हैं, कितने डिवोटेड हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। So sir, have you faced कोई ऐसा फेलियर जो आपको लगता है कि इस फेलियर ने मुझे या तो मोटिवेट किया है या फिर मुझे डिमोटिवेट किया है? How you tackled that?
हम ऐसा कुछ फेलियर तो अभी मेरे मतलब कुछ ऐसा अप एंड डाउन मेरे लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है, बट एवरेज चला है बिकॉज ऑफ माय बैलेंस अप्रोच. Yeah, As on probably date, don't feel. as on date, I can say कि everything is going good Amazing. on the right track. और सर दूसरा मेरे को आपसे बात करके जो एनालाइज हुआ और जो मैं ये बता सकता हूँ कि अब शायद आप में और एक दूसरे इंसान के अंदर एक अप्रोच जो सबसे बड़ी डिफरेंस थी कि अगर आपके पास जो थोड़ा बहुत फेलियर आया होगा, दूसरे इंसान जितना डिमोटिवेटेड हो आप उसको उतना लिए ठीक है ना, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम फिर से कर लेंगे. तो आप इसलिए ये बोल पा रहे हैं कि मेरी लाइफ जो है वो बैलेंस चली, मेरी लाइफ वो बैलेंस चली. बट जो दूसरे इंसान होते हैं वो उस चीज को नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं, बहुत ही पॉजिटिव लेते हैं. इसलिए वो बोलते रहते हैं करके कि हाँ हमारी लाइफ के अंदर बहुत ही उतार चढ़ाव थे, बहुत ही हम लाइफ गंदी देखी या बहुत ही अच्छी देखी. मगर आप में सेल्फ मोटिवेशन होने के कारण और ये चीज सोचने के कारण कि हाँ जो भी है मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ और इसको अपॉर्चुनिटी की तरह, इसलिए आप हमेशा ये बोल पा रहे हैं करके कि हाँ मेरी लाइफ ठीक है, इतने ज्यादा फेलियर से इतने ज्यादा सक्सेस नहीं, मैं एवरेजली चलता रहा. ये I don't care about meager failures and all. बिल्कुल सर, ये बहुत ही That is part and parcel of life. जी सर, बहुत ही keep going on. बेहतरीन बोले सर. सर आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस में से आपके पूरे करियर में जो आपको सबसे ज्यादा यादगार रही है, और कोई एक ऐसी परफॉर्मेंस सर जो कि मतलब आप चाहते थे कि हाँ ये और बेहतर हो सकती थी मगर मतलब एक आधी फोकस के कारण या फिर डिस्ट्रैक्शन के कारण थोड़ा इधर उधर हो गई? सर वही सर लास्ट एशियन गेम्स जो कि जकार्ता में इंडोनेशिया में. जी सर. थोड़ा सा मैं एंड टाइम पे 3 months बिफोर इंजर्ड हो गया था. जी सर. तो बिकॉज ऑफ दैट आई कुडंट डू माय बेस्ट, आई कैन से. ओके सर. जी. पर वो भी मैं सोचता हूँ कि यार इंजरी वगैरह तो क्या है, स्पोर्ट्स का पार्ट है ना. जी. इस पे अपना कंट्रोल तो नहीं है. तो ये है कि शायद से लगता है कि अब नेक्स्ट एशियन गेम में आएगा मेडल, ऐसा इसलिए हुआ होगा. तो पूरा लाइक लास्ट 3 months वाज टोटली डिस्टर्ब्ड. जी सर. तो आई वाज नॉट एबल टू डू माय वर्कआउट्स एंड ऑल ना. दैट्स व्हाट थोड़ा सा परफॉर्मेंस. वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस सर जो अभी तक आपको इंटरनेशनली लाइक इन एशियन गेम में आई वाज 4th इन लास्ट एशियन गेम्स एंड ओपन मीट्स आर वर्ल्ड लेवल ग्रैंड प्री. जी. बट इट डिपेंड्स. कई बार जैसे उसमें मेरा दुबई में 2014 में सिल्वर मेडल भी था, 2017 में लॉन्ग जंप में गोल्ड मेडल भी था. तो कॉम्पिटिटर्स थोड़े से कम होते हैं पर अलग अलग कंट्री के होते हैं, तो कई बार वो उसमें कंपटीशन टफ भी पड़ जाता है, कई बार इजी भी पड़ जाता है. तो अगर मैं ओवरऑल अगर बोलूं तो सबसे टफ कंपटीशन तो एशियन गेम्स का ही था. ओके. तो सर अब तो हमारी पैरालंपिक टीम की परफॉर्मेंस है, हाउ डू परफॉर्मेंस तो इट इज स्प्लेंडिड, मैग्निफिसेंट. इस बार सब कुछ ऐसा हो रहा है जो कि कभी इससे पहले नहीं हुआ. एंड इसके बाद तो आप जानते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. जी सर. तो इट विल कीप हैपनिंग नेक्स्ट कमिंग जितने भी गेम्स आ रहे हैं सर. तो अभी के इसका मेन रीजन शायद ये नहीं कि सर जागरूकता ज्यादा होती जा रही है और हमारे एथलीट्स और जागरूक होके और एनजीओस जागरूक हो रही हैं, इसलिए हमें फैसिलिटीज भी मिल रही हैं और इसलिए हम ज्यादा मेडल्स लेके आ पा रहे हैं. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. अवेयरनेस तो है ही. अवेयरनेस के साथ साथ जो खेलो इंडिया स्कीम है, तो ऐसे बहुत सारे स्कीम्स हैं. इससे क्या होता है, एक फोरम मिलता है. अगर किसी बहाने आप खेलो इंडिया गेम्स के बहाने अगर आप डिस्ट्रिक्ट से जोन से सेलेक्ट करके लोगों को अगर लाते हैं, तो अगर वो इंटरनेशनल नेशनल स्टेडियम में आते हैं, वहां पे चाहे उनका मेडल ना आया हो लेकिन वो सोचते हैं कि यार ये क्या है. उसके बाद उसके बारे में उनका जो रुझान है वो उधर कुछ मतलब अगर 2000 लोग आ रहे हैं तो उनमें से 200 लोग तो जरूर मुझे लगता है कि उनका जो इंक्लिनेशन है वो उधर हो जाता है स्पोर्ट्स के प्रति. तो ऐसे ही 200 लोग 2000 हो जाते हैं, 2000 कभी 2 लाख लोग भी होंगे जो कि अच्छे स्पोर्ट्स होंगे. मैं केवल एथलेटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ जी. जितने भी हमारे डिसिप्लिन हैं स्पोर्ट्स में उन सारे स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ. तो एक फोरम मिलने के बाद भी आदमी मोटिवेट हो सकता है. अब फोरम के साथ साथ आपकी फैसिलिटीज
मिलनी चाहिए। जी जैसे कि अगर हम आर्चरी, शूटिंग और कुछ ऐसे गोल्फ, ये सब सब गेम्स हमारे यहाँ पॉपुलर नहीं, बिकॉज दीज गेम्स आर वेरी एक्सपेंसिव. जी Very few people like those who can afford these games. That's why people don't want to play. People Right. think, people are money minded. People like, they think that if I will do my graduation, post graduation, I can earn. तो ये रीजन है कि कम लोग Want to आ share पाते this हैं. information, ये बहुत नया डेवलपमेंट है राजस्थान में कि कोई ग्रामीण ओलंपिक शुरू किए जा रहे हैं, उससे मतलब गांवों में पहुंचेंगे और पता करेंगे, जैसे कि जो राजस्थान का ट्राइबल एरिया है वहां पर आर्चरी बहुत पॉपुलर है, वहां के लोगों में वो स्किल है, नेचुरली दे हैव स्किल, तो वो होगा। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टार्ट। अगर गांव के नहीं, आप सीधा देखो, जैसे कि टैलेंट हंट का क्रिकेट में होता है जी, तो क्रिकेटर्स में आपको हर ब्लॉक, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अच्छे अच्छे एथलीट्स मिल जाएंगे, क्रिकेटर्स मिल जाएंगे, बिल्कुल, क्योंकि इसमें टैलेंट हंट नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है। ऐसे ही क्या, इसीलिए मोदी जी की एक बहुत ही अच्छी स्कीम है खेलो इंडिया, और ऐसे ऐसे बहुत सारे स्कीम्स स्टेट में भी अभी लॉन्च की जा रही हैं, जिससे लोगों को मतलब टैलेंट को देखा जा रहा है कि हाँ भाई, पर इसमें अभी इतने स्पेशलाइज्ड लोग नहीं है कि ऐसे ऐसे टैलेंट्स को आगे ला पाए। तो अभी थोड़ा सा बहुत वी हैव टू लॉन्ग गो अहेड। हमारा जो सफर है अभी शुरू हुआ, ये मान सकते हैं। Exactly. This is for the first time we have won any medal in athletics. Yes. Right. So sir, आपका कोई मैसेज सोसाइटी के लिए जो आप कहना चाहते हैं कि from you to the society? अब मैं इतना ही बोलूंगा कि जो लोग भी हैं, जो सोचते हैं, चाहे नहीं भी सोचते हैं, जो लोग अपने फिटनेस के बारे में सोचते हैं, कम से कम अपने फिटनेस के लिए वो रनिंग शुरू करें, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी शुरू करें, एरोबिक हो या स्विमिंग हो, किसी भी तरीके के कोई स्पोर्ट्स, जिससे कि कम से कम एक फायदा तो जरूर होगा कि उनका जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो बहुत ही फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अगर आप स्पोर्ट्स को परस्यू करते हैं एज अ फिटनेस मंत्रा, तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ का हेल्थ इंश्योरेंस है। मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो सिंस 2004 मेरे को कभी फीवर अभी तक आया नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस, मैं मानता हूँ, क्योंकि आपका मेटाबॉलिक रेट, आपकी मतलब बॉडी मतलब इतना बैलेंस रहता है। साथ में अगर आप खाने पीने का ध्यान देते हैं, अपने हाइजीन का ध्यान देते हैं, तो ये बेस्ट मंत्र है कि स्पोर्ट्स को एज अ फिटनेस पर्पज से आप लें, और उसके बाद अगर आपका दिल चाहे तो उसको प्रोफेशनली भी अपनाने की कोशिश करें। और वो जो कहावत पहले कहा करते थे लोग कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, नाउ इट हैज बीन चेंज्ड। नाउ इट इज खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब, और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। वो तो कुछ भी बन सकते हो। तो ये मोटो है। तो आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीबॉडी कि स्पोर्ट्स को टेक इट एज अ मंत्रा, फिटनेस मंत्रा, और सभी लोग स्पोर्ट्स के प्रति आए, करें। जहां जिसको मौका मिले, पार्क में तो पार्क में थोड़ा रोड रनिंग कर लें, स्टेडियम मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर स्पोर्ट्स करें, रनिंग शुरू करें। तो ये बहुत ही यस बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आज मुझे और दीदी को अंदर से लग रहा है कि हमें चार्ज अप हो गया सर। नहीं। ये आपकी थोड़ा बातें अगर और हम आपका सोचेंगे पॉजिटिव तो एटीट्यूड ही है सर कि आज मतलब हमें चार्ज अप लग रहा है सर। थैंक यू सो मच। नहीं, आई विल रिक्वेस्ट कृतिका जी एंड यू ऑल, ऐसे तो यू मस्ट बी डूइंग दैट, बट स्टिल आई वुड रिक्वेस्ट यू कि हाँ, एक कम से कम हाफ एन आवर टाइम निकाल के इन द मॉर्निंग you do your fitness. Sure. You never need to buy a paracetamol. जी